Hello, good morning to all of you, to all my brothers and sisters. This is Evangelist Mehtab Gill, and I welcome all of you in part 2 of the topic Authority of the Jesus Christ. I hope you have seen the part 1, and I also want to thank all those brothers and sisters who appreciated me a lot for that part 1. I received so many comments on WhatsApp and on YouTube channel. So this appreciation, this encouragement is very important to me, and this is the cause that your appreciation helped me to do this again and to record this video and make a part 2 about the authority of Jesus Christ. So thanks to all of you who have subscribed to our channel. There is a very dear sister of mine who liked the video. She's from America, so she liked the video, and she said that she liked the part of English when I was introducing last video and talking some things in English language. So I felt the need to make another video on another topic in English language, so that my English viewers, English brothers and sisters who understand and speak English language, they can also listen to my videos. So we'll definitely do this in some video. So once again, I'll sing a Christian song for you, definitely in Urdu or in Punjabi, because I don't know much Christian songs in English, but there is one, but I will keep that English Christian song for my English video. So today I am going to sing Chhu Mujhe Chhu, and hope all those brothers and sisters who speak Urdu or Punjabi, who are from Pakistan, who are from India, who are from the countries where people know Urdu or Hindi language, they will understand me, and they know, many of them, they know this song. Chhu mujhe chhu khuda ru mujhe chhu chhu mujhe chhu khuda ru mujhe chhu मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू छू मुझे छू खुदा रू मुझे छू मट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने संवारे मट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने संवारे यूं ही कलामे खुदावन गूंधे हमें और निखारे भर मुझे भर खुदारू मुझे भर छू मुझे छू
खुदारू मुझे छू, होठों को छू, सोचों को छू, ख्यालों को छू, आए यीशु। होठों को छू, सोचों को छू, ख्यालों को छू, आए यीशु। छू मुझे छू, प्यारे यीशु। छू मुझे छू, खुदारू मुझे छू। आलूदगी जान जिस्म की, रूह की तू दूर कर दे। खौफे यहोवा वो कामिल, पाकीज़गी से भर दे। भर मुझे भर, खुदारू मुझे भर। छू मुझे छू, खुदारू मुझे छू। आमीन। So let's stand here and let me share my thoughts, what God has put in my heart today in this beautiful morning. It's everywhere like foggy, and it's much foggier than the last time today. Last time in my camera the screen is not looking clear. This is just because of the fog. Fog is on the lens of camera, so that's why you were not able to see the clear view. It's just because of the fog. Let's talk about our topic today. I'll speak in Urdu again and to my Urdu listeners. So मैं एक बार फिर से आप सबको खुदावंद यीशु मसीह में सलामती भेजता हूँ, आप सबको सलाम भेजता हूँ और दुआ करता हूँ कि खुदावंद आप सबों को ज़्यादा से ज़्यादा छुए और बरकत दे, जैसे आज के मैंने गीत में भी गाया। और मेरी ये दुआ भी है कि खुदावंद आप सबको छुए, जैसे खुदावंद ने हम सबों को, मुझ समेत हम सबों को पिछले टॉपिक के वसीला से छुआ था, जो कि खुदावंद यीशु अल मसीह, हज़ूरुल मसीह की अथॉरिटी के ताल्लुक़ से था, इख्तियार के ताल्लुक़ से था। उसमें हमने खुदावंद यीशु अल मसीह के जो इख्तियारात हैं उस पर मैंने कहा था कि हम बात करेंगे। और क्योंकि जैसे मैंने पिछली बार भी कहा कि ये मुमकिन नहीं कि एक वीडियो में इस सारी बात को बांध सकूं, कह सकूं, बयान कर सकूं। सो लाज़मी था कि ये पार्ट 2 जो है वो इसका बनाया जाए। और हकीकत तो ये है अज़ीज़ों कि पार्ट 2 हो या पार्ट 200 या पार्ट 2000, इस बात का बयान मुमकिन ही नहीं है हकीकत में, क्योंकि खुदावंदों के खुदा का इख्तियार जो है वो ज़मीन से आसमान तक और आसमानों में है। और जब आज साइंसदान कोशिश कर रहे हैं कायनात को देखने की, इसके एंड तक देखने की, तो ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि वो इसमें कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि इसकी इंतहाओं में वो देखने की सकत नहीं रखते, क्योंकि इसकी इंतहाएं जो है वो सिर्फ़ खुदावंदों के खुदा ही को मालूम है। जहाँ तक हमारी नज़र है वहाँ तक ही हम देख सकते हैं,
जहाँ तक हमारी क़ुव्वत है वहाँ तक ही हम बोल सकते हैं। सो मैं फिर भी खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जिसने मुझे ये क़ुव्वत बख्शी है, ये ताकत बख्शी है, ये हिम्मत बख्शी है, ये हौसला बख्शा है कि मैं इस उन्वान पर बात करने वाला हूँ। आज के इस पार्ट 2 में, जो कि इसी सिलसिला की दूसरी कड़ी है, खुदावंद यीशु अल मसीह का इख्तियार, अथॉरिटी ऑफ द जीसस क्राइस्ट, उस पर मैं बात करने को हूँ। और आज जिस एक वाक़े को मैं आप सब के सामने रखने वाला हूँ वो नहायत ही इम्पॉर्टेंट, नहायत ही उम्दा और नहायत ही आंखें खोल देने वाला टॉपिक है, कहानी है, वाक़या है जो आज हम इस वीडियो में सुनने को है। लेकिन एक बार फिर से मैं अपने उन तमाम बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों, बेटों से जो चाहे मसीही हैं या नॉन क्रिश्चियन है या किसी ही मज़हब से क्यों ताल्लुक़ नहीं रखते, मैं उन सब से ये बरमला एक सवाल पूछना चाहूँगा। मैं इस पूरी दुनिया से सवाल करना चाहता हूँ जिनमें मसीही शामिल नहीं है, जो गैर मसीही हैं, उनके साथ ये मैं बात कर रहा हूँ। और वो सवाल ये है कि आप मुझे अपने दिल पर हाथ रख कर बता दीजिए कि गुनाह मुआफ़ करने का इख्तियार किसके पास है। क्या इंसान गुनाह मुआफ़ कर सकता है? क्या इंसान के पास ये इख्तियार है कि वो गुनाह मुआफ़ करे? जी हाँ, हकीकत तो यही है कि इंसान गुनाह मुआफ़ करने का इख्तियार नहीं रखता। ऐसे ही जैसे ये कह देना कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह से खुदावंद यीशु अल मसीह, हज़ूरुल मसीह की जब मैं बात करता हूँ तो ये इख्तियार भी दुनिया में और किसी के पास नहीं है। ऐसा कोई नहीं है जो ये कहे कि जा तेरे गुनाह मुआफ़ हुए। सो मैं ये समझता हूँ कि ये इख्तियार, ये अथॉरिटी सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद यीशु अल मसीह ही के पास है। आज इस वीडियो में मैं उस वाक़ये को आप सभी के सामने रखना चाहता हूँ जो बाइबल मुक़द्दस में मौजूद है और जिसमें हम एक ऐसे शख्स की कहानी को देखते हैं जो काफ़ी अरसा से बीमार था, बहुत ही ज़्यादा दुख में और तकलीफ़ में था। और मैं ये तो नहीं जानता कि कितने सालों से वो बीमार था, ना जाने कितनी देर हुई होगी कि वो बीमार हुआ होगा। हज़ूरुल मसीह, बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि कफ़रनहूम में वो आए और वहाँ सारी दुनिया को पता लग गया कि हज़ूरुल मसीह वहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। तो वहाँ एक जम्मे गफ़ीर इकट्ठा हो गया कि वहाँ जगह ही ना बची कि कोई वहाँ और शख्स आ सके, हज़ूरुल मसीह को देख सके, उनकी बातों को, उनके कलाम को सुन सके। सो वहाँ एक शख्स है जो बीमार है और लिखा है कि 4 लोग उस शख्स को चारपाई पर उठाकर हज़ूरुल मसीह के पास लाना चाहते थे। जी हाँ, लाना चाहते थे। और जब वहाँ इतनी भीड़ देखी, इतना जम्मे गफ़ीर उन्होंने देखा, तो वो परेशान हुए और उन्होंने वहाँ एक अनोखा काम किया। उन्होंने एक ऐसा काम किया जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उन्होंने उस छत में, जिस छत के नीचे हज़ूरुल मसीह कलाम फरमा रहे थे, तालीम दे रहे थे, कलाम बोला जा रहा था, वहाँ उन्होंने उस छत को उधेड़ा, उसकी शायद छतीरियों को, उसके बालों को, उसकी सिरकियों को, जब उस वक्त में शायद कच्ची ही होती थी, या आज की बात करें तो शायद टाइलें उन्होंने, गार्डर और टियर और टाइलें उन्होंने हटा कर जो है वो उस मरीज़ को उस छत के नीचे लटका कर नीचे किया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आज के इस जदीद दौर में अगर लेंटर भी होता तो मैं
समझता हूँ कि वो लेंटर तोड़ने से भी बाज ना आते, क्योंकि हज़ूरुल मसीह के साथ मुलाकात करना, उनको देखना, उनको छूना और उनसे शिफा पाना, ये किसी के लिए भी बहुत अहमियत रखता है। आज भी जब लोग शिफा पाना चाहते हैं, आज भी जब लोग अपनी बीमारियों से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, तो वो दूर दूर और लंबा सफ़र इख्तियार करते हैं। अगर तो कोई गैर मसीही बहन और भाई है तो शायद वो एड़ियों के बल चलता हुआ, कूनियों के बल चलता हुआ और ना जाने कहाँ कहाँ ठोकर खाता है, कई अस्पतालों में, कई ऐसी मजहबी जगहों पर, कई ऐसे लोगों के पास जिनको वो समझता है कि ये मुझे शिफा दे सकते हैं। अगर मसीही बहन और भाइयों की बात करूं तो वो मुख्तलिफ़ खुद्दाम के पास जाते हैं, खुदा के लोगों के पास जाते हैं ताकि वो उनके पास जाएं, दुआ करवाएं और खुदा उनको शिफा दे। लेकिन वहाँ उस दिन तो सरापा ख़ुद हुज़ूरुल मसीह वहाँ मौजूद थे, और जब वो ख़ुद वहाँ मौजूद हों तो क्यों लोग शिफा लेने के लिए ना आएँ। हुज़ूरुल मसीह ने देखा कि उन्होंने उस शख्स को चारपाई से नीचे को लटका दिया है और वो शख्स वाकई ही शिफा पाना चाहता है। तो वहाँ हुज़ूरुल मसीह ने उनके ईमान को देखकर, उस शख्स के ईमान को देखकर, क्योंकि वो चाहता था कि उसको शिफा मिले, मुझे ये लगता है, मुझे ऐसा मालूम होता है कि शायद वो उन लोगों को डायरेक्शन दे रहा हो कि वो लोग उसको लेकर आए हैं और उसको यीशु के पास लाना चाहते हैं। तो जब पता लगा कि भीड़ ज़्यादा है तो शायद उस मरीज़ ने कहा हो कि यहाँ तो बहुत रश है भाई, अब क्या करें। और उन चारों ने भी सर पकड़ लिया हो कि अब क्या होना चाहिए, क्या किया जाए। उन्होंने कईयों से मिन्नत और समाजत भी की होगी और कहा होगा कि हमें थोड़ा सा रास्ता दे दें, हमें आगे जाने की इजाज़त दें, हम आगे इसको यीशु मसीह के पास लेकर जाना चाहते हैं। तो शायद उनको किसी ने रास्ता ना दिया और वो बीमार शख्स और वो चारों लोग भी मायूस ही हुए होंगे, लेकिन उनकी मायूसी उनके आड़े ना आई। मुझे ऐसा मालूम होता है कि उस मरीज़ ने एक पल में तो ये ज़रूर सोच ही लिया होगा कि शायद आज मेरा यीशु से मिलना मुमकिन ना हो पाए, लेकिन फिर उसे ये ख्याल आया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि आज मैं उसको हुज़ूरुल मसीह के इतने करीब आऊँ और बग़ैर उससे मिले, बग़ैर शिफा पाए, बग़ैर तब्दील हुए चला जाऊँ। तो उसने कहा होगा कि भाई कुछ भी करो, मुझे हुज़ूरुल मसीह के पास उसके चरणों में मुझे लेकर जाओ। उन्होंने इधर उधर सोचा होगा, उसने कहा चाहे आज तुम्हें छत ही क्यों ना तोड़नी पड़े, तुम्हें ज़रूर मुझे हुज़ूरुल मसीह के पास पहुंचाना है। तो उन्होंने कहा होगा अगर ऐसी बात है तो आओ फिर हम छत ही तोड़ते हैं। और ऐसा ही हुआ और उन्होंने उस छत को जहाँ हुज़ूरुल मसीह मौजूद थे उसको तोड़ा। और जब यीशु अल मसीह ने उनके इस ईमान को देखा तो ज़रूर वो खुश हुआ। जी हाँ, इसी तरह से जब हम अपनी नाउमीदियों में हुज़ूरुल मसीह के इतना करीब आकर मुड़ जाएं तो वो शायद हमसे खुश नहीं होता। आज अगर हम तकलीफ़ों में हैं, परेशानियों में हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि हुज़ूरुल मसीह के पास आने की जुस्तजू ऐसी हो कि वो हमसे खुश हो जाए। ये खैर एक अलग बात है। मैं जो कह रहा हूँ वो ये है कि हुज़ूरुल मसीह ने जब देखा कि वो छत तोड़कर, छत को उधेड़ कर उन्होंने उसको चारपाई समेत नीचे लटका दिया है, तो लिखा है कि यीशु अल मसीह को उस पर तरस आया। मैं तो ये समझता हूँ कि उसके दिल में ये बात भी चल रही होगी और ये कह रहा होगा कि मैं तो ना सिर्फ शिफा पाने आया हूँ बल्कि उससे बढ़कर मैं तुझसे मिलने आया हूँ। ये कैसी खूबसूरत बात है कि उसकी सरापा हुज़ूरुल मसीह से मुलाकात हुई और हुज़ूरुल मसीह ने उसे देखा और उसने हुज़ूरुल मसीह को और उसके नूर को, उनकी हस्ती को देखा। ये मैं समझता हूँ एक बड़ी
अहम तरीन बात है इस पूरे वाक़े में कि वो हज़ूरुल मसीह से मिल पाया। शिफा तो उसको, अगर हज़ूरुल मसीह का इख्तियार देखें तो शिफा तो उसको शायद उस छत के बाहर भी मिल ही जाती, क्योंकि हज़ूरुल मसीह ना सिर्फ़ छत के अंदर खड़े हुए जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है, बल्कि वो ये भी जानते हैं कि छत के बाहर क्या हो रहा है। ये इख्तियार सिर्फ़ छत के बाहर तक का ही नहीं है, उसे ये भी मालूम है कि ज़मीन पर क्या चल रहा है, और उसे ये भी मालूम है कि आसमान पर क्या है। हर एक जगह का वो जानते हैं, हर एक के बारे में वो उनको मालूम है। और जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ मालूमात के ताल्लुक़ से, तो इसके आगे भी बात होने वाली है, इस पर भी बात होगी। हज़ूरुल मसीह ने वहाँ एलानिया तौर पर कहा कि जा तेरे गुनाह मुआफ़ हुए। ये कैसी अजीब बात है कि हज़ूरुल मसीह उसकी बीमारी को दूर करने की बजाय ये कह रहे हैं कि जा तेरे गुनाह मुआफ़ हुए। वहाँ ना सिर्फ़ आम लोग मौजूद थे, बल्कि वहाँ फ़क़ी और फ़रीसी और शरा के आलम और उस्ताद लोग भी वहाँ मौजूद थे, जो हमेशा इस ताक में थे कि हज़ूरुल मसीह पर इल्ज़ाम लगाया जाए, हज़ूरुल मसीह को जो है वो किसी ना किसी तरह पकड़ा जाए, उसको सलीब दी जाए, उसकी इस खिदमत को रोक दिया जाए, उसके इस काम को रोक दिया जाए। तो खैर, जब हज़ूरुल मसीह ने ये कहा कि जा तेरे गुनाह मुआफ़ हुए, तो वहाँ मुख्तलिफ़ सदाएँ बुलंद होना शुरू हो गईं, मुख्तलिफ़ सरगोशियाँ होना शुरू हो गईं, और वहाँ लोग एक दूसरे के साथ बात करना शुरू हो गए कि ये कैसी अजीब बात की है इसने, ये कह रहा है कि जा तेरे गुनाह मुआफ़ हुए। तो वहाँ फरीसी जो मौजूद थे, उन्होंने अपने जहनों में, अपने दिलों में ये सोचते हुए ये कहा कि ये तो कुफ़र है, ये तो कुफ़र बकता है, ऐसे कैसे मुमकिन है कि कोई ये कहे कि जा तेरे गुनाह मुआफ़ हुए हैं, सिवाय खुदा के ये तो इख्तियार किसी के पास नहीं है। तो हज़ूरुल मसीह ने, जैसे मैंने कहा कि वो सब जानते हैं, हज़ूरुल मसीह ने उनकी दिल की बात को, उनके अंदर की बात को जान लिया था, परख लिया था, और उन्होंने उनकी बातों को सुनते हुए जो उन्होंने दिल में कहीं, ये उसके जवाब में कहा कि क्या ये आसान है कहना कि जा तेरे गुनाह मुआफ़ हुए, या ये जो मैं आगे बात कहने वाला हूँ वो ज़ाहिर करता है कि उनके पास कुल इख्तियार है। उन्होंने कहा कि क्या ये कहना आसान होगा कि तेरे गुनाह मुआफ़ हुए, या ये कि चल उठ और अपनी चारपाई उठा और चल फिर। अज़ीज़ों, जब यसू अल मसीह ने, हज़ूरुल मसीह ने जब ये कहा कि उठ और अपनी चारपाई उठा और चल फिर, तो फिर वो शख्स ना सिर्फ़ बीमारी से शिफा पा गया, बल्कि वो उठा और जिस चारपाई पर उसे 4 लोग लेकर आ रहे थे, उसको वो ख़ुद अपने यकीनन सर पर उठा के अपने घर को वापस रवाना हो गया। कैसी खूबसूरत और अजीम बात है, मैं समझता हूँ। और इस पूरे वाक़या में हज़ूरुल मसीह का ये कहना कि जा तेरे गुनाह मुआफ़ हुए, क्या आज तक आपने किसी इंसान को ये बात कहते हुए सुना है कि तेरे गुनाह मुआफ़ हुए? क्या ये इख्तियार सिर्फ़ खुदा ही के पास नहीं है? जब वो कहे तो गुनाह मुआफ़ होते हैं, अदरवाइज़ मैं नहीं समझता कि गुनाह मुआफ़ हो सकते हैं। जहाँ तक तो बात है, आप में से कोई ये ज़रूर सोच सकता है, चाहे वो मसीही बहन भाई हो या गैर मसीही बहन भाई, वो ये कह सकता है कि आप लोग तो दुआ रबानी जब पढ़ते हैं तो उस वक्त ये कहते हैं कि जिस तरह हम एक दूसरे के गुनाह को मुआफ़ करते हैं, तू हमारे भी गुनाह मुआफ़ कर। तो इसका मतलब कोई मुश्किल काम नहीं है समझना। इसका मतलब यही है कि जो हम एक दूसरे की ऐब जोइयाँ, एक दूसरे की बुराइयाँ, एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो हम प्रोपोगेंडास और इसी तरह से मुख्तलिफ़ तरह की प्लानिंग्स हम बनाते हैं, अगर हम एक दूसरे के साथ कुछ बुरा करते हैं तो ज़रूर है कि हम एक दूसरे की गलतियों को, एक दूसरे की ख़ताओं को हम मुआफ़ करें। हम एक दूसरे की गलतियों और ख़ताओं को मुआफ़ उस सेंस में कर सकते हैं कि
कि जो मैंने उससे गलत किया है उसकी माजरत के तौर पे, कि हाँ उसने अगर मेरा बुरा किया है तो फिर भी मैं अपने दिल में उसके बारे में बुरा नहीं सोचूंगा। ये इस लिहाज से बात है। अदरवाइज़ गुनाहों को मुआफ़ करने का इख्तियार सिर्फ़ खुदा ही के पास है। और उस दुआ में भी हम यही कहते हैं कि जिस तरह हम दूसरों के, एक दूसरे के गुनाहों को, एक दूसरे की गलतियों को मुआफ़ करते हैं, तो हमारे गुनाह भी हमें मुआफ़ कर। और हमारे गुनाह का मुआफ़ होना सिर्फ़ खुदा के इख्तियार में है, ना कि किसी इंसान के इख्तियार में। आज इस दुनिया में कोई ये नहीं कह सकता कि तेरे गुनाह मुआफ़ हुए। तो जैसे मैंने एक सवाल थोड़ी देर पहले किया, मैं उसी के ताल्लुक़ से दोबारा से बात करूँगा। अज़ीज़ों, जो सवाल मैंने किया है, मैं चाहूँगा कि उसका जवाब अगर किसी के पास है तो वो ज़रूर दे कि क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई इंसान किसी के गुनाह मुआफ़ कर सके। उन फ़कीहों ने, उन फरीसियों ने अपने दिल में यही बात सोची थी, जिसमें हज़ूरुल मसीह के बारे में उन्होंने कहा कि ये तो कुफ़र बकता है, ये तो बात सिर्फ़ खुदा के अलावा और कोई कर नहीं सकता, गुनाह मुआफ़ करने का इख्तियार तो सिर्फ़ खुदा के पास है, ये कैसे ये कह सकता है। उन्होंने इस बात को ज़रूर आपस में किया और उसी वक्त हज़ूरुल मसीह ने उनकी बात को जाना और ये कहा कि क्या ये कहना आसान है कि जा तेरे गुनाह मुआफ़ हुए, या ये कहना कि चल उठ फिर अपनी चारपाई उठा। जब हज़ूरुल मसीह ये कहते हैं कि क्या ये कहना आसान है कि तेरे गुनाह मुआफ़ हुए, तो उनके लिए तो अज़ीज़ों बहुत ही आसान है ये कहना और ये करना। आपके और मेरे कहने से अगर कोई ये कहे कि तेरे गुनाह मुआफ़ हुए, तो वो अगर कह भी दे तो उसके गुनाह मुआफ़ हो नहीं सकते, क्योंकि वाकई ही ये इख्तियार सिर्फ़ खुदा ही के पास है कि वो गुनाहों को बख्शने वाला है, गुनाहों को मुआफ़ करने वाला है। अगर वो मुआफ़ करे तो मुआफ़ हो सकते हैं, नहीं तो गुनाहों की मुआफ़ी नामुमकिन है। आज जब हम इस बारे में बात कर ही रहे हैं, तो मैं ये कहना भी ज़रूरी समझता हूँ कि गुनाहों की मुआफ़ी वाकई ही इंसान के लिए, पूरी इंसानियत के लिए एक ऐसी बात थी जो शायद नामुमकिन थी और उसके लिए इंसान कुछ कर नहीं पाता था। हम दुनिया से हर चीज़ ख़रीद पा रहे थे, हर काम कर रहे थे, सिवाय इस एक बात के कि हम अपने गुनाहों को मुआफ़ कर सकें या करवा सकें। ये क्योंकि एक नामुमकिन बात थी जो करना हमारे लिए मुमकिन नहीं था, लेकिन जिसके लिए मुमकिन था, जिसके लिए आसान था, जिसके लिए ये एक ऐसी बात थी जो उसके इख्तियार में है और सिर्फ़ उसी के इख्तियार में है, वो ख़ुद इस दुनिया में आया और उसने आकर सारे गुनाहों को, लोगों के जो उस पर ईमान लाए, उनको मुआफ़ कर दिया है। और ये बात कलाम अक़दस में लिखी हुई हमें मिल जाती है। यूहन्ना की मार्फत लिखी हुई हज़ूरुल मसीह की अंजील, उसके 3 बाब और आयत नंबर 16 में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। हज़ूरुल मसीह का भेजा जाना, अपने बाप की तरफ से, बाप की जानिब से उनका भेजा जाना, बख्श दिया जाना, ये पूरी दुनिया के लिए एक फ़ज़ल है कि जो बात हम कर नहीं पा रहे थे, जो काम हमसे नहीं हो पा रहा था, वो ख़ुद सरापा हज़ूरुल मसीह ने आकर इस दुनिया में हमारे लिए आसान कर दिया। और हज़ूरुल मसीह का इस दुनिया में आकर गुनाहों को मुआफ़ कर देना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये उनके लिए मुमकिन है, क्योंकि वो खुदा है। तो जो खुदा है उसके लिए ये बात मुमकिन है। लिखा है बाइबल मुक़द्दस में कि जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। तो ये एक ऐसी, मैं समझता हूँ, बात है जो इंसान के बस की बात नहीं है, ये सिर्फ़ खुदा ही करने की क़ुव्वत कुदरत रखता है। आज की इस दूसरी वीडियो में, पार्ट 2 में, हुज़ूरुल मसीह के इख्तियार के ताल्लुक़ से बात हुई है। मैं समझता हूँ जैसा मैंने पहले कहा कि ये एक नामुमकिन बात है कि तमाम इख्तियार को चंद एक वीडियोज़ में बयान कर दिया जाए। ज़रूर इस पर
और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो होनी चाहिए, जो हो सकती हैं, जो की जानी चाहिए। सो आज की ये वीडियो आपके लिए, जी हाँ बिल्कुल मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आपके लिए कैसी बरकत की बाइस रही है, ये आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में, मेरी दरख्वास्त होगी कि यूट्यूब के इसी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे और हौसला अफजाई हो मेरी कि हाँ इस पर मैं आगे बात करता चलूँ और ज़रूर ना सिर्फ मैं बरकत पाऊँ बल्कि आप जो देख रहे हैं आप भी बरकत पाने वाले हों। सो आप सबका मेरी सारी खिदमत को खुदा के जो हजूर मैं कर रहा हूँ, इसको सपोर्ट करने के लिए मैं आपकी का शुक्रगुज़ार हूँ। आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ और आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि जब आप हमारी इन वीडियोस को देखते हैं तो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमारा मकसद इस कलाम को, इन बातों को अपने पास रखना या चंद एक लोगों के पास रखना ही नहीं है, बल्कि इसका मकसद है कि ये कलाम दुनिया में हर एक के पास पहुँचे। तो अगर आपका कोई भाई है, आपका दोस्त है, आपकी बहन है, आपके रिश्तेदार हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके जानने वाले हैं, जिन्हें आप समझते हैं कि हज़ूरुल मसीह के इख्तियार का मालूम का पता चल जाए, तो ज़रूर आप मेरी इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें, बांटें, ताकि ये कलाम जब हम बांटें तो ये बढ़ता चला जाए और बहुतों के लिए तब्दीली का बायस हो। सो फिर हम ज़रूर है कि हम एक और वीडियो में मिलेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू सो मच। अगर गन्ना खाने का दिल कर रहा है तो भाई ये अभी इस वक्त तो मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। आइए घर को चलते हैं।